starting with today's show. I think Prasita doesn't need any introduction. The way she has always been, telling about all the facts about all the medical terms in a very easy and, kind of manner in which we all understand it perfectly. And that is one thing we all are always amused about. So with this, I would just like to hand over it to Prasita. And before that, I'll just like to say a few words because this September month is the Dementia Awareness Month. So that's why we are having quite a few series of shows with dementia. So this would be one first of those. This is actually the second of those series. The earlier we had last week. So then we also have a second show with Prasita again in the last week of September. And for today's show, she's just going to highlight about the various facts of dementia with you all. So over to you, Prasita. And it's great to have you with us today. Thanks, Sanjana. So it is always a pleasure to be a part of more session. Hello, Prasita. Hi, Ranjana aunty. How are you? I'm fine. So last time also you had taken I was very happy to see that program. Thank you, aunty. So just to give a brief introduction about myself, my name is Prasita and I'm head of clinical operations at Epoch Elder Care, which is India's expert in dementia care. So as Sanjana has mentioned that this September month is a dementia awareness month. So we thought that we should take a small session about dementia just to rebrief about what actually is dementia and how to take care of it. So also just want. You are on mute. So in India, actually more than 4 million people have some form of dementia. कुछ ना कुछ type का dementia सबको चल रहा है. And if we see all over the world, so 44 million people actually are suffering from dementia. कहीं पे पता चलता है, कहीं पे तो पता भी नहीं चलता है कि people are having this dementia. So actually this is a global health crisis which we have to address and which we have to take care. So starting with our session, I have Saju with me. So Saju, if you can just brief about yourself. Thank you, Prasita. Good afternoon, everyone. Like Prasita said, it's always been our pleasure to be around such energetic young people. I would use the term young because you look more lively than me and Prasita. And it's so giving you a brief about myself. My name is Saju Thomas. I'm one of the managers at Epoch's home in Pune. Epoch's home in Pune, which is Pune House, and I have been dealing with this from last. I have been with Epoch for the last 5 years, and it always never ceases my attention. The way we take care of residents and the things that we learn each and every day. And every day is a new learning, and based on those learnings, we are taking our session today on dementia, as this is the month of dementia awareness. And we thought we'll start with the session, facts about dementia, which Prasita is going to do. Over to you, Prasita. Thanks, Saju. Let me just, Sanjana, if you can disable the screen sharing. Ma'am, there are many new people, so you better. Yeah, you can share the screen now. Okay, thank you. So, as discussed, we are going to talk more in detail about dementia. So, dementia is basically people think that the dementia is only just forgetfulness. So we are going to discuss that other than just forgetfulness, there are other things which is associated with dementia. So as we age, there are, aging has two components. One is physical aging and one is mental aging. So let's talk about this. So what is actually physical aging? So physical aging has all these parameters which include our physical status like vision. So as we grow elder, we have this lot of issues. Cataract issue होता है, दिखना कम हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है.
हियरिंग में इशू होता है, सुनाई कम देता है, कुछ लोगों को ऐसे घंटी जैसी आवाज भी आती है कान में। टच में हमारे दिक्कत होता है, बिकॉज हमारी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि बहुत जल्दी ठंडा लगता है या बहुत जल्दी गर्म लगता है, जल्दी हम जल जाते हैं। देर इज स्किन सैगिंग, देर इज फेशियल चेंजेस, बैलेंस में इशू होता है। सो बैलेंस इशू में देर इज रिस्क ऑफ फॉल, क्योंकि एसोसिएटेड विद सम अदर थिंग्स, जैसे कि पार्किंसन होने की वजह से या स्ट्रोक होने की वजह से बैलेंस में भी जब हम एल्डरली होते हैं तब इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्ट में देर इज इशू, सो देर इज एल्टर्ड स्टेट, सेंस ऑफ टेस्ट, बट इट हैज इट्स ओन रीजन, क्योंकि हम दवाइयाँ लेते हैं बिकॉज ऑफ अदर कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज की, शुगर की, तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि ये ड्राई माउथ हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा टेस्ट इफेक्ट होता है। स्मेल डिक्रीज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किचन में गैस ऑन कर जाते हैं लेकिन हमें स्मेल आती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता है कि गैस ऑन है। देन देर इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, जो कि एल्डर जब हम हो जाते हैं तब हमारा ब्लैडर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सोने में दिक्कत होता है, ओवरऑल हेल्थ भी हमारी अफेक्ट होती है। लाइक वी विल हैव दिस डायबिटिक इश्यूज, वी विल हैव दिस कार्डिक इश्यूज, सो ये सारी चीजें ओवरऑल हेल्थ में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एजिंग, जो हम सफर कर सकते हैं। मेंटल एजिंग में क्या होता है, ये भी एज का ही एक फैक्टर है, मेंटल एजिंग। सो इन मेंटल एजिंग डिक्रीज अटेंशन स्पैन होता है। पहले हमें बैठ के हम 3 घंटे की पिक्चर आराम से देखते थे, अब मन नहीं करता है, अब उतना अटेंशन नहीं होता है कि ओके इसके बाद क्या होगा, वो उसका कुछ मन नहीं होता है। देन लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर हम मार्केट गए और हमने 100 रुपए का नोट दिया और उन्होंने बोला कि 45 रुपीज 50 पैसे का सामान हमने खरीदा है, सो वी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि ओके हमें कितना रुपए वापस लेना है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने में। मेमोरी चेंजेस हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन, पहले हमें सबके एड्रेस याद रहते थे, फोन नंबर्स याद रहते थे, अब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पहले घर में 20 लोग खाना खाने आते थे, हम आराम से खाना बना लेते थे, अब थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, कैसे बनाएंगे, क्या चीज होगा। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल एंड मेंटल चीज, जो नॉर्मल एल्डरलीज में होता ही है। किसी में हो सकता है, किसी में नहीं होगा, या कम ज्यादा हो सकता है। So now what we are going to discuss and which is very important, कि नॉर्मल एजिंग में जो भूलना होता है वो डिमेंशिया से कैसे डिफर है, या हम कैसे उसको डिफर कर सकते हैं कि हमें डिमेंशिया हो रहा है या दिस इज कॉमन थिंग जो सबको होता है, मुझे भी होता है। तो साजू, ओवर टू यू। सो पहले नॉर्मल एजिंग का देख लेते हैं, जो कि हम सभी लोग एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में, और आप में से काफी लोग इस चीज के बारे में फील भी करते हैं कि क्या मुझे भूलने की बीमारी हो रही है या फिर मुझे डिमेंशिया हो रहा है। तो हम उसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि नॉर्मल एजिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। सो बेसिकली नॉर्मल एजिंग में कोई भी कॉन्वर्जेशन जो 1 साल पुराना हो चुका है, मतलब 1 साल पहले जो कॉन्वर्जेशन आपने किया होगा, आपको एकदम से आज अगर पूछा जाए कि हम लोगों ने पिछले साल कार के बारे में बात किया था, या फिर किसी शादी के बारे में बात किया था, या किसी ड्रेस के बारे में बात किया था, क्या आपको याद है? तो ये रिकॉल कर पाना मुश्किल होता है, और ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल एजिंग का ही पार्ट है कि आप 1 साल पुरानी चीजें इजीली रिकॉल नहीं कर पा रहे। दूसरा है नॉट बीइंग एबल टू रिमेम्बर द नेम ऑफ एन एक्वेंटेंस। आप अपने किसी एक्स कलीग, फ्रेंड्स, पुराने दोस्त, रिश्तेदार, इन लोगों के नाम एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहे। ऐसा काफी बार होता है ना, जहाँ पे हम किसी को देखते, हम जानते ही हमारे फ्रेंड है, हम क्या बोलते मनी मन उनको पहचानते भी हैं, लेकिन उनका नाम रिकॉल करने में हमें कंफ्यूज होते हैं। श्याम था, राम था, एकदम से हमारे वो बोलते हैं ना जबान पे आके रुकी है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा। तो ये नॉर्मल एजिंग का ही पार्ट है, ये सभी के साथ होता है, इनफैक्ट हम सबके साथ भी होता है। फॉरगेटिंग थिंग्स और इवेंट्स ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली और ओकेजनली में ये फर्क है कि आप कभी कभी भूल रहे हो, जैसे गाड़ी की चाबी या फिर मोबाइल फोन रख के भूल जाना। सो ये सारी चीजें कॉमन है, नॉर्मल एजिंग के ही पार्ट है, जहाँ पे आपने कुछ देर पहले चाबी निकाल के टेबल के ऊपर रखा था, लेकिन आप कहीं और ढूंढ रहे हो, और फिर वापस आपको दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे आपने वो चाबी रखी है करके। ओकेजनली हैविंग डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड, काफी बार होता है ना कि यार वो क्या बोलना था, मैं भूल गया, वो शब्द क्या था, क्या बोलते थे उसको, हम बचपन में खेलते थे उससे। ये सारे वर्ड्स हम यूज करते जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या बोला जाता था उस चीज को।
हमें याद है, हमें पता है, लेकिन हम उस वर्ड को प्रॉपर्ली याद नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है करके, विच इज क्वाइट नॉर्मल। आप अपने मेमोरी के बारे में वरीड हो क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो पिछले साल की बातें थी, जो चाबी रख के भूल जाना, वर्ड्स याद नहीं कर पाना, ये सारी चीजें आपको पता चल रहा है, आप उसके लिए वरीड हो कि मेरी मेमोरी में कोई इश्यू आ रहा है, मैं पुराने जैसे चीजें याद नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन आपकी फैमिली वरीड नहीं है क्योंकि उनके लिए वो देख पा रहे हैं कि आपका डे टू डे फंक्शंस, डे टू डे एक्टिविटीज सब नॉर्मल चल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं। सो डिमेंशिया में मेमोरी ही एक अकेला चीज नहीं है जो इफेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें। सो नॉर्मल एजिंग के रिलेटेड ये सारी चीजें कॉमन है। डिमेंशिया में क्या है वो देख लेते हैं। एक साल पुराना कॉन्वर्सेशन हमने पुराना कॉन्वर्सेशन अगर याद नहीं आ रहा है तो दैट इज समथिंग टू वरी। वहां पे हम सोच सकते हैं कि ओके ये तो कुछ प्रॉब्लम है। कल जैसे आपने अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बात किया कि हम लोग ये गाड़ी खरीदने वाले हैं या फिर हम इस पार्टी में जाएंगे, और आज जब आप उनके साथ उस चीज के लिए जाने का प्लान कर रहे हो या फिर जाने के लिए बुला रहे हो तो फिर वो याद ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, रिकॉल ही नहीं कर पा रहे उस कॉन्वर्सेशन को। सो दैट कैन बी डिमेंशिया। नाउ फैमिली मेंबर्स के नाम याद नहीं रख पाना, दोस्त पुराने कलीग्स, इन सारे लोगों का नाम याद नहीं रख पाना इज क्वाइट कॉमन। पर डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स का नाम याद नहीं रख पाना इज क्वाइट इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट कॉमन, राइट? सो दैट हैपेंस इन डिमेंशिया। फॉरगेटिंग थिंग्स और इवेंट्स फ्रीक्वेंटली, सो बार बार चीजों को भूल जाना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था लेकिन आधे घंटे बाद बता रहे हैं कि खाना नहीं खाया, खाना दे दो। और थोड़ी देर पहले बाथरूम गए थे लेकिन अभी 5 मिनट बाद फिर से बता रहे हैं कि नहीं बाथरूम नहीं गए, बाथरूम जाना है। सो बार बार चीजों को भूल जाना, डेली रूटीन्स में फर्क पड़ जाना। सो ये सारी चीजें डिमेंशिया में होती है। पॉजेस एंड सब्स्टिट्यूशंस व्हेन फाइंडिंग वर्ड्स, हमने पहले देखा कि वर्ड मिल नहीं रहा है, भूल जा रहे हैं या फिर हम उस पर्टिकुलर वर्ड को याद नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आपके मेमोरी में इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे आप कॉन्वर्जेशंस एक्टिवली लीड नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत आ रही है एक एक्टिव कॉन्वर्सेशन लीड करने में, तो आप पॉज लेते हो, आप सोचते हो मुझे क्या बोलना है आगे, मुझे याद नहीं है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या बोलना है। तो इन सारी जगहों पे ऑटोमेटिकली पॉज आने लगते हैं। आपको वर्ड्स क्या बोलना है याद नहीं कर पा रहे, आपको ढूंढना पड़ता है कि मुझे कुर्सी बोलना है, टेबल बोलना है, क्या बोलना है। सो दैट कैन बी डिमेंशिया। आप वरीड नहीं हो क्योंकि आपको इस चीज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस हो नहीं पा रही, आप अपने मेमोरी को खुद एसेस नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी फैमिली वरी होना शुरू करता है। दे स्टार्ट गेटिंग वरीड क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो चेंजेस है उनके लिए नॉर्मल नहीं है और वो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करती है और उनके लिए ये एक नया चेंज है और एक ऐसा चेंज है जो एकदम से उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। So these are the differences between normal aging and dementia. Next slide. So then what is actually dementia? Is it psychiatric or neurological? So it is a neurological disorder. कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में when our loved one, when our family members, they are depressed और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, agitate हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि इनको psychiatric evaluation की ज़रूरत है, जो कि सही है। क्योंकि इनिशियली जो डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं वो फॉरगेटफुलनेस से शुरू होते हैं, बट लेटर ऑन ये सारी चीजें उसमें आती हैं, विच इज मोर लाइक अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। बट डिमेंशिया इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्योंकि ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू अवर ब्रेन सेल। एंड हु डज इट अफेक्ट? इट अफेक्ट्स एल्डरलीज हु आर अबव 60 years of age. हाउ डज इट हैपन? सो ये कैसे होता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन बताना बहुत ही मुश्किल है, बट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट, जिसके में इंजुरी भी हो सकती है। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, सर में चोट लग गई है जिसकी वजह से ब्रेन सेल डैमेज हुए हैं, या फिर कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज जो ट्रीट नहीं हो पाई है उसकी वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। बट एक नॉर्मल पर्सन जिसको ये सारी कुछ भी नहीं हुआ है उनको भी डिमेंशिया होने के चांसेस है। इज इट इनहेरिटेड? अगर ये मेरे पेरेंट्स को है तो क्या ये मुझे हो सकता है? ये बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन है जिसपे अभी भी रिसर्च चल रहा है, बट कोई कंक्लूजन इस पे नहीं निकला है। बट यस, अगर पेरेंट्स में बोथ मदर और फादर दोनों को डिमेंशिया है, सो वो 2 to 3% चांसेस उस पर्सन के डिमेंशिया होने के हो सकते हैं, बट
ये कोई श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है कि उनको नहीं है। So how does we diagnose it and is it treatable? Can it be prevented? ये हम आगे we will discuss about this. So as I have said कि जो डिमेंशिया होता है वो सिर्फ फॉरगेटफुलनेस नहीं है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अब वो क्या सिम्टम्स होते हैं? So these are the symptoms. So डिमेंशिया के जितने भी सिम्टम्स है, it is divided into cognitive, behavioral, mood, psychological, whole body and also common. So इसमें क्या होता है? There are bunch of symptoms which make a person declared as a dementia, suffering from dementia. Cognitive में there comes the short term memory. क्या आधे घंटे पहले क्या पिया था, क्या खाया था, वो चीजें कुछ याद नहीं होती। ओरिएंटेशन नहीं होता है, बैंक में खड़े हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक में कहाँ है, हम रास्ता कहाँ से है वापस जाने का। जजमेंट इफेक्ट हो जाता है, अटेंशन और हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल हमारा इफेक्ट हो जाता है। सो जो हमारी मेन बेसिकली थिंकिंग वाली चीजें होती हैं, पैसा लेन देन करना, ये सारी चीजें हमारा इफेक्ट होता है। दिस इज फ्रॉम कॉग्निटिव। एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया दे समटाइम्स बिकम एग्रेसिव, एजिटेटेड, गुस्सा आने लगता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, किसी चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, या फिर उनको वॉन्डरिंग होता है, घूम रहे हैं तो पूरे घर पे ही घूम रहे हैं या बाहर निकल के चले जा रहे हैं, खो जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। मूड में भी चेंजेस आते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी एकदम दुखी लगते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, डोर बंद कर लेते हैं। देन देर इज हैलुसिनेशन होता है, डिल्यूशन, डिप्रेशन होता है, पैरानोइया होता है कि मुझे कोई कुछ कर देगा। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स को डिमेंशिया है तो आप देखिएगा ये सिम्टम्स कॉमन होगा कि वो सस्पिशियस हो जाते हैं, मेरा पैसा कोई चुरा ले जा रहा है, मेरे बैंक में से पैसे विड्रॉ हो गए, मेरा पासबुक कहाँ है, पर्स कहाँ है मेरा, या मुझे 2 लोग मारने आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल कॉमन थिंग्स व्हिच हैपेंस इन डिमेंशिया। लॉस ऑफ एपेटाइट और रेस्टलेसनेस हो सकता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइटिस इट हैपेंस बिकॉज दे मे बी हैविंग सम अदर डिफिकल्टीज और डिफरेंट इश्यूज जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि डिमेंशिया में हमारी वोकेबलरी इज ऑल्सो गॉन। तो एक और मेजर चीज हो जाता है और परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो क्यों नहीं खाना खा रहे वो हमें भी नहीं पता चल पाएगा। देन देर आर सम अदर कॉमन सिम्टम्स जिसमें उनके मसल मूवमेंट, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि खाना मुंह में रखा है और उसको निगलना भूल जाएंगे। तो दिस इज कॉमन इन डिमेंशिया। एंड एज आई सेड डिमेंशिया इज मच मोर देन फॉरगेटफुलनेस एंड मूड स्विंग। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक डिमेंशिया रेसिडेंट सफर करता है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। So Saju will be explaining about diagnosis. So एक क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है कि हम इसे डायग्नोज कैसे करें, या फिर हम इसे डायग्नोज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डिमेंशिया में अर्ली डायग्नोसिस का काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। हम देखते हैं और काफी बार ऐसा होता है कि डिमेंशिया को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर पाना भी मुश्किल होता है। तो काफी बार डायग्नोसिस सिर्फ 3rd या 4th स्टेज में ही पता चलता है कि इनको डिमेंशिया है। तब तक काफी सारे अलग अलग डॉक्टर्स या ट्रीटमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल एजिंग के तौर पे लोग कंसिडर करते हैं कि नहीं, इनका तो नॉर्मल एज के हिसाब से जो टर्म जनरल इंडियन पब्लिक यूज करते हैं ये तो शायद सठिया गए हैं। तो ये एक कॉमन वर्ड है जो हर कोई अपने अपने घर में शायद यूज कर चुका हो या आपने सुना हो। तो ये जो चेंजेस है इसे ही कहेंगे डिमेंशिया का स्टार्टिंग चेंजेस। और ये अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया है और अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करना चाहते तो सबसे पहले कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो एक न्यूरोलॉजिस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं जो कि अलग अलग टूल्स से यूज किया जा सकता है। GDS ग्लोबल डिटोरेशन स्केल एक टूल है जो हम इपॉक में यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी को डिमेंशिया है या है तो फिर वो कौन से स्टेज पे। तो वैसे अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट ये टूल्स यूज करते हैं। उसमें क्या क्या एसेस करते हैं वो लोग देखते हैं उनकी थिंकिंग और फिजिकल फंक्शनिंग कितनी अफेक्टेड है और किस लेवल पे है। सो दिस इंक्लूड्स मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज स्किल्स एंड मैथ स्किल्स, तो जो कि हमारे डायरेक्टली कॉग्निटिव से रिलेटेड है। इसके अलावा फिजिकली बैलेंस और सेंसरी रिस्पॉन्सेस और रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। सो ये असेसमेंट के दौरान एक न्यूरोलॉजिस्ट को या फिर एक डिमेंशिया एक्सपर्ट को क्लियरली पता चल जाता है कि it's not clear, it is not clear. Excuse me, please explain the 4 stages. I am not able to understand the stages, how you differentiate it. Right.
Auntie, I will get to the stages during the question and answer session. We'll complete with the diagnosis, and during the end, we'll answer the question and answer sessions, if that's okay with you. Okay. Okay. Thank you, Auntie. Right. Next, brain scans. So CT, MRI, PET scans. ये रिवील करते हैं कि ब्रेन में अगर कोई डैमेज हुआ है या फिर ब्रेन सेल्स की डेथ हो रही है, किसी को स्ट्रोक की वजह से डिमेंशिया हो सकता है, किसी को ट्रॉमा की वजह से डिमेंशिया हो सकता है, किसी का नॉर्मल डिजनरेशन ब्रेन में नॉर्मल एज रिलेटेड डिजनरेशन की वजह से डिमेंशिया हो सकता है. सो पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई ये हमें रिवील करती है. सो मैं एक इमेज आपको पहले दिखाऊंगा. प्रसिता, इफ यू कैन टेक मी टू द इमेज. सो आप देख सकते हो इसमें ये एक सीटी स्कैन है जिसमें हम 3 तरीके के स्कैन्स देख पा रहे हैं. पहला वाला नॉर्मल ब्रेन है जिसमें आपको कलर्स दिख रहे हैं, जो ब्लैक गैप्स हैं वो नॉर्मल हैं. ये एक नॉर्मल ब्रेन का स्ट्रक्चर है. माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में क्या देख सकते हो आप? एक ब्लैक गैप देख सकते हो ब्रेन के एक साइड पे, और ये गैप कहीं पे भी हो सकता है. ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रेन सेल्स डेथ हो रहा है, या फिर उतनी जगह पे ब्रेन सेल्स वहां पे डैमेज हो चुके हैं. तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो पार्ट इफेक्ट हुआ है, जिस एरिया में ब्रेन सेल्स की डेथ हुई है, वो फंक्शंस इफेक्ट होते हैं. जैसे फ्रंटोटेम्पोरल, जो आगे का ब्रेन, यहाँ पे जो पार्ट है वो थिंकिंग, जजमेंट, इन सारी चीजों के लिए वर्क करता है. अगर वहां पे ब्रेन सेल्स की डेथ हुई है तो जजमेंट पे इफेक्ट आता है, थिंकिंग पे इफेक्ट आता है, डिसीजन मेकिंग्स में इफेक्ट आता है. सो डे टू डे रूटीन्स में कौन से ब्रेन के कौन से साइड में इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो यहाँ पे हम माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट देख रहे हैं जो सेकंड इमेज पे देख पा रहे हो. थर्ड में है अल्जाइमर्स डिजीज, जो एक डिमेंशिया का ही पार्ट है. डिमेंशिया के अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें अल्जाइमर्स एक है. उसमें आप देख सकते हो कि काफी हद तक ब्रेन इफेक्ट हो चुका है, एक बड़ा सा गैप दिख रहा है. जब ये गैप बढ़ जाता है वैसे वैसे कंडीशंस में डिटोरेशन बढ़ जाता है, कॉग्निटिव फंक्शंस में डिक्लाइन आता है, फिजिकल फंक्शंस में डिक्लाइन आता है. आप जो रेगुलर चीजें करते थे उन सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिलेगा. आप ये अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नियर वंस के साथ ये चेंजेस देख पाओगे. डिमेंशिया एकदम से एक दिन में नहीं आता, इट्स अ स्लोली प्रोग्रेसिंग कंडीशन. और एक बार आपने डिमेंशिया डायग्नोज कर लिया है तो वो जरूरी नहीं है कि 1 साल में डिक्लाइन हो, 2 साल में डिक्लाइन हो, या फिर 1 दिन में या 1 महीने में डिक्लाइन हो. डिपेंड, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है. डिपेंड करता है कि केयर पे, ट्रीटमेंट पे और ओवरऑल वेलबींग पे. सो ये माइल्ड स्टेज से एडवांस स्टेज में या अल्जाइमर्स डिजीज तक या डिमेंशिया के कोई भी एक स्टेज में अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो टाइम लगता है. एकदम से नहीं होता है. ब्रेन के पार्ट्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और वैसे वैसे फंक्शनैलिटी में इफेक्ट आता है. उसी तरह वापस अगर डायग्नोसिस वाले स्लाइड में लास्ट में हम देखते हैं ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट बेसिकली इनिशियल मतलब डायग्नोसिस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया में हेल्प करता है. न्यूरोलॉजिस्ट या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ये टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को जब उनको लगता है कि इनको अल्जाइमर्स हो सकता है. बेसिकली सिर्फ अल्जाइमर्स हम रूल आउट कर सकते हैं इस टेस्ट के साथ. डिमेंशिया के और टाइप्स हम ब्लड टेस्ट के साथ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. इसमें क्या होता है कि बीटा एमलॉइड मेजर किया जाता है. एक प्रोटीन है जो अक्यूमुलेट करता है ब्रेन में, जो एबनॉर्मली ज्यादा अक्यूमुलेट करता है इन केस ऑफ अल्जाइमर्स. और दूसरे ब्लड टेस्ट अभी डेवलप हो रहे हैं या फिर डेवलप हो चुके हैं, लेकिन नॉर्मली एक एक्सपर्ट को ब्लड टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती. उनको कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन स्कैन से ही पता चल जाता है कि डिमेंशिया है या नहीं करके. जैसे कि मैंने कहा, अर्ली ऑनसेट के लिए हम ब्लड टेस्ट यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है कि अल्जाइमर्स है या नहीं करते. सो वहाँ पे ब्लड टेस्ट का यूज हो सकता है. तो ये 3 मेजर डायग्नोसिस हैं, मतलब डायग्नोसिस मॉड्यूल्स हैं जिसके हेल्प के साथ हम चेक कर सकते हैं कि डिमेंशिया है या नहीं किसी को. थैंक यू. प्रसिद्ध, नेक्स्ट.
So Ranjana aunty, coming to your question about the staging. So अभी we discussed about the symptoms, हमने diagnosis भी देख लिया. So dementia की जो staging है वो काफी लंबी है, 7 stages होते हैं. तो इनिशियल जो स्टेजिंग होती है वैसे उसमें हमें पता ही नहीं चल पाता है कि किसी को डिमेंशिया है कि नहीं है. तो लाइक थर्ड स्टेज तक हमें नहीं मालूम चलेगा क्योंकि वो माइल्ड डायग्नोसिस होगा, चीजें भूल जाना, पता नहीं चलना, तो हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है. जब हम मॉडरेट में आते हैं, यानी कि फोर्थ से लेके हम फिफ्थ स्टेज के बीच में आते हैं, तब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सिग्निफिकेंटली लगता है कि नहीं, देयर इज सम इशू विद अस, या फिर हमें नहीं मालूम चलेगा लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स को मालूम चलता है क्योंकि हम ठंड में गर्मी के कपड़े पहन के आ रहे हैं और हम नीचे बेड है लेकिन हम नीचे सो रहे हैं, या हमें पता नहीं है कि हमें वॉशरूम कहाँ जाना है, तो हम किचन में ही यूरिन पास कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें माइल्ड मॉडरेट में होती हैं, यानी कि फोर्थ से फिफ्थ स्टेज के बीच में ये सारी चीजें होती हैं. इसके बाद आता है सीवियर स्टेज, जो कि होता है सिक्स्थ एंड सेवेंथ स्टेज. सीवियर स्टेज में हमारी पूरी वोकैबुलरी चली जाती है. हम अगर पानी बोलना चाहते हैं तो हम पानी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमको वो वर्ड नहीं मिलेगा. हम बोलेंगे कि हमें कबर्ड चाहिए, कबर्ड चाहिए, लेकिन जो आपके केयर गिवर्स होंगे, जो आपके साथ रहते हैं, अगर वो आपको अच्छे से जानते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप पानी मांग रहे हो. सो हम एट ईपॉक एल्डर केयर, हमारे पास जो एल्डरलीज रहते हैं, हम उनको इतने अच्छे से जान जाते हैं कि वो अगर वो कुछ चीज बता भी नहीं पा रहे हैं, सो वी आइडेंटिफाई कि ओके ये चीज बोल रहे होंगे. सो यू नो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, समटाइम्स इट हैपेंस कि सुबह उठते हैं और एल्डरली एकदम से खाना खाना बंद कर देते हैं, पर बोल नहीं सकते क्योंकि वो मॉडरेट टू सीवियर डिमेंशिया के बीच में रहते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी चली गई है. बट एज ए केयर गिवर, क्योंकि हमारे पास अब इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें लगता है कि ओके इनके दांत में दर्द होगा जिसकी वजह से ये नहीं खा पा रहे होंगे, सो वी इमीडिएटली टेक देम टू अ डेंटिस्ट. सो इस तरह से हमें धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना पड़ता है. बट विथ रेसिडेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम और एल्डरली सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, हमें बहुत पेशेंस रखना है, हमें उनको बहुत प्यार से केयर करना है जैसे हम एक छोटे बच्चे का करते हैं. सो ये स्टेजिंग के बारे में हो गया. बट नाउ वी हैव टू नो कि क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. बहुत लोगों की ना क्वेश्चन आता है कि कैसे होता है और ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सॉरी, माय स्लाइड इज स्टक, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस. सो जैसे कि हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर इफ यू वांट टू प्रिवेंट अ कार्डियक अरेस्ट, आपको दिल की बीमारी से दूर रहना है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा. वैसे ही डिमेंशिया के लिए देयर इज नो पर्टिकुलर चीज थिंग्स टू प्रिवेंट डिमेंशिया, लेकिन आप रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क. कैसे? फर्स्ट है कि आप अपने हार्ट को अच्छे से देखिए ताकि हार्ट पंप करे, ब्लड अच्छे से पंप करे, आपके ब्रेन में ब्लड पहुंचे एंड द सेल्स आर एक्टिव. दूसरी चीज है हेल्दी लाइफस्टाइल, बी एक्टिव, एक्सरसाइज करिए, सुबह वॉक पे जाइए. एकदम आपको बहुत ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप सुबह शाम थोड़ा वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए. एंड इमोहा में तो बहुत सारी चीजें करवाते ही रहते हैं एक्टिविटीज, सो यू पीपल आर मोर एक्टिव देन अस. एंजॉय अ हेल्दी डाइट, जो कि मैंने अभी देखा था कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाए थे, आई हैव सीन द पिक्चर्स, सो आई नो दैट यू पीपल आर फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट. चैलेंज योर ब्रेन, अच्छे अच्छे वैसे गेम्स खेलिए जो आपके ब्रेन को चैलेंज कर सकते हैं, लाइक पजल, सुडोकू. आपको वो नहीं पसंद है, डोंट वरी अबाउट इट, दूसरी एक्टिविटीज करिए जैसे कि गार्डनिंग है, सिलाई है, बहुत उसमें दिमाग यूज होता है, कौन सा धागा कहाँ रखना है, कौन सा कलर किसके बाद लाना है, गार्डनिंग में बीज डाला फिर पानी कितना डालना है, तो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा. तो आप घर पे हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या को आप एक्टिव रखिए. देन इज एंजॉय सोशल एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इमोहा कराता है टू कीप यू ऑलवेज एक्टिव. आप दोस्तों से मिलिए, फ्रेंड से मिलिए, थोड़ी छोटी मोटी पार्टीज करिए जिसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं वेरियस थिंग्स. तो ये कुछ ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं जो करने से आप रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को. बट अभी तक कोई भी ऐसा रिसर्च प्रूव नहीं हुआ जो कि प्रिवेंट कर सकता है. और बहुत सारी चीजें हैं कि नारियल तेल में खाना बनाने से डिमेंशिया दूर होता है, लेकिन ये सारे सिर्फ रिसर्च पे हैं. एवरीथिंग हैज इट्स ओन इफेक्ट, थोड़ा बहुत वो किसी तरह से हमारे फिजिकल चीजों को मोटिवेट करता है, प्रिवेंट करता है, प्रमोट करता है, एंड हमारे ब्रेन जो है वो एक्टिव रहते हैं. सो दिस इज अबाउट रिस्क ऑफ. आंटी आप म्यूट में हैं.
I would like to ask you that Alzheimer, is it the initial stage of dementia? So आंटी, Alzheimer's डिमेंशिया एक बहुत बड़ा सा छाता है, छतरी है, और डिमेंशिया अल्जाइमर्स उसका एक पार्ट है. तो अल्जाइमर्स इनिशियल अल्जाइमर से वो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, और फिर वो डिफरेंट और डिमेंशिया में बहुत सारे टाइप्स हैं. अल्जाइमर्स इज जस्ट अ टाइप. आपका ब्रेन में कौन से पार्ट पे इफेक्ट हुआ है. अगर आपके आगे के पार्ट के सेल, ब्रेन सेल डैमेज हुए हैं, तो वो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया टाइप से होता है, उसको बोलते हैं. तो वो थोड़ा सा डिटेल में है, आई एम नॉट गोइंग वेरी डिटेल इन दैट, बट डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशिया है जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं उसके. No, I asked difference between Alzheimer and dementia. That Alzheimer is the initial stage of dementia. That's what I asked. आंटी एक्चुअली मैं उसको थोड़ा उल्टा करूंगी. एक्चुअली अल्जाइमर्स डिमेंशिया ही है, एक पार्ट है. आप उसको इनिशियल बोल सकते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया. Okay, I get you. यस आजू. So हर किसी के दिमाग में भाई, आर यू वरीड? डेफिनेटली यू विल बी वरीड, बट आपको क्या चीजें नहीं करनी है. सो डोंट हाइड, शेयर विद योर लव्ड वंस. अगर ये छोटी मोटी चीजें इनिशियली आपको लग रही है कि मेमोरी में लॉस हो रहा है, या फिर मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आप इनिशियली ये सारी चीजें जान पाओगे, आप देख पाओगे कि आपको ये चेंजेस दिख रही है. काफी बार क्या होता है कि हर कोई ये सोचता है कि मैं ये बताऊंगा तो क्या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या करूंगा, वो मुझे जज करेंगे, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा. नहीं, आपको ये चीजें नहीं छुपानी है. आपके लव्ड एंड नियर वंस से आपको ये शेयर कर, ताकि वो आपकी मदद कर सके. दूसरा, पैनिक नहीं हो. दिस कैन बी मैनेज. ये प्रॉपर केयर और प्रॉपर प्लानिंग से अगर पहले से ही पता चल जाता है तो मैनेज किया जा सकता है. और दो तरीके के मैनेजमेंट है, एक होम मैनेजमेंट है और एक इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट है, जो हम प्रोवाइड करते हैं असिस्टेड होम्स के तौर पर. ওটাই একমাত্র উপায়, কিছু না. Can I ask you some questions about, because Auntie, is it okay if we complete the session and we do the... Okay, sure. I was thinking that the session is completed now. Okay. No, Auntie, we were just about to finish, so you can write it down. We can come to you on. मैं कॉल पे हूँ, बाहर जाके बात करो. Yes, Ajay, please. Okay, thank you. So, like I said, do not panic. And who should we consult? We should consult a neurologist. Basically, जैसे प्रसिद्धा ने स्टार्टिंग में कहा कि एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं, बेसिकली एजिटेशन, एग्रेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सारी चीजें जो मेडिकल टर्म्स हैं, ये जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं, ये डिमेंशिया का एक पार्ट है. जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस करता है, आपको माइल्ड टू मॉडरेट स्टेजेस में ये दिखता है. और काफी बार लोग मिसकंसेप्चुअलाइज करते हैं कि ये इनको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, इनको शायद बाइपोलर है, इनको शायद स्किज़ोफ्रेनिया है. सो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जाके साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, राइट. वो वहां पे उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि ये डिमेंशिया है या कोई साइकियाट्रिक कंडीशन है. But the treatment, but who should we actually consult? We should consult once we identify its dementia, we should consult a neurologist, because neurologist एक whole area cover करता है ब्रेन का. ब्रेन में जितने भी फंक्शंस है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारे कैप्चर करता है. मेडिकेशन उस हिसाब से देता है, फिजिकल चेंजेस उस हिसाब से वो आपको समझाता है, जो साइकियाट्रिस्ट भी केपेबल है ट्रीटमेंट के लिए. लेकिन साइकियाट्रिस्ट का मेन एम रहता है कि जो साइकोटिक सिम्टम्स है, जो बिहेवियरल सिम्टम्स है, उसको ट्रीट करना. फिर हाउ इज इट डायग्नोस्ड? सो जो डायग्नोसिस के टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, न्यूरोलॉजिस्ट जो मेमोरी गेम्स या फिर मेमोरी असेसमेंट करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं, इंटरव्यू और टेस्ट के साथ, हम उसे वैसे डायग्नोस कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया डायग्नोसिस. ठीक है. कुछ चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी है व्हेन वी आर डीलिंग विद अ रेसिडेंट हु इज एल्डर हु इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया. कभी भी उनसे क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि ना एक तो उनकी मेमोरी जा चुकी है, तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है. इफ वी आस्क कि आप स्कूल कहाँ गए थे, सो जस्ट टू रिमेम्बर दैट थिंग कि माय गॉड मैं स्कूल कहाँ गया था, फिर वो परेशान हो जाएंगे. जैसे कि बताया कि मेमोरी गेम्स हम खेल सकते हैं, लेकिन वही खेलिए जो उनको पसंद आ रहा है, हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते. कॉग्निटिव स्टिमुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप का करना है. कॉग्निटिव स्टिमुलेशन में पजल, सुडोकू, ये सारी चीजें आती हैं, पर उनको जो पसंद है.
और हमें उनको हमेशा ओरिएंट नहीं करना है कि आज सैटरडे है, आज फ्राइडे है, इतना बजा है, ये चाचा का बेटा है, ये मामा का बेटा है, ये सारा पूरे टाइम नहीं बता के रखना है, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और हमें एज ए केयर गिवर हमें अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखनी है। हो सकता है कि हमने उनके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया हो पर वो नहीं खाए या आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करे, सो दैट इज ओके, बिकॉज वो नहीं कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स हो सकते हैं, आप उनके साथ मार्केट गए हो, मॉल गए हो, एकदम से वो गुस्सा हो जाए, बट दैट इज फॉर देम इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। हमारे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है, बट वी एज ए केयर गिवर वी हैव टू बी पेशेंट एंड हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हो सकती है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो कुछ चीजें हैं, सॉरी can you जा सकते हैं। राइट, एक पॉइंट जो प्रसिद्धा के में मैं ऐड करूंगा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन में, आपको जब एक्टिविटी आप कर रहे हो, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन की एक्टिविटीज कर रहे हो, गेम्स कर रहे हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ज्यादा भी नहीं कर रहे हो और कम भी नहीं कर रहे हो। ज्यादा आप करोगे तो क्या हो रहा है कि ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ऑलरेडी उन एल्डरली को लग रहा होगा कि वो इतना चीजें नहीं कर पा रहे, तो आप अगर उनको ज्यादा करवाने लगोगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रहा है। तो हमें उतना ही करना है जितना वो इंटरेस्टेड है करने के लिए और जितना वो उस टाइम पे कर पा रहे हैं। हमें ज्यादा नहीं करना है, और हमें कम इसलिए नहीं करना है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं, जैसे मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन है। आपको टू लिटिल भी नहीं एक्सपेक्ट करना है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो कर ही नहीं पाएंगे तो हमें इनके साथ ट्राई करना है, ऐसा नहीं। आप बेशक नई नई चीजें ट्राई करिए, आप देखिए उनका रिस्पॉन्स क्या है, और उस हिसाब से आप अगर वो अच्छे से कर रहे हैं यू कंटिन्यू विद इट, अगर नहीं कर रहे हैं तो लीव इट, आप नेक्स्ट चीज पे चले जाओ। सो नेवर डू टू मच और टू लिटिल। और कॉग्निटिव स्टिमुलेशंस में आपको बहुत ज्यादा नहीं करना। या प्रसिद्ध सॉरी अगेन got struck. So basically अभी तक for dementia there is no particular treatment, still research is going on, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो डिमेंशिया को ट्रीट कर सके। The only thing which can be done is management, which can be done by the caregiver. अगर घर पे नहीं मैनेज हो पाता तब we need a institutional help, जहाँ पे लोग एक्सपर्ट होते हैं डिमेंशिया को टेक केयर करने के लिए। बट अ डिमेंशिया रेसिडेंट कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ अगर डिमेंशिया डायग्नोज हुआ है उसके बाद भी। हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज में ईपॉक में वी हैव रेसिडेंट्स हु लीड्स वेरी नॉर्मल लाइफ, सेलिब्रेशंस में जाते हैं, दे गो फॉर आउटिंग, द फैमिली कम्स टू विजिट देम। अगर उनको कुछ एक्टिविटीज करनी होती है, खाना बनाना होता है, बिरयानी बनाना होता है, तो दे डू दिस। एंड द बेस्ट थिंग इज गुड मैनेजमेंट। अगर उसका मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है तो हम उस स्टेजिंग को रोक सकते हैं। हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली स्टॉप द पेस ऑफ द स्टेजिंग। वी कैन हेल्प द एंड प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो जो थे वही वैसे ही रह सकते हैं, एंड वी कैन टेक केयर ऑफ देम। एंड ऑल्सो ए गुड मैनेजमेंट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हम अपने फैमिली मेंबर के बारे में जानते हैं तो जब उनकी वोकैबुलरी चली गई है देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम। तो हम जब कम्युनिकेट कर सकते हैं सो देयर विल बी नो इशू, बिकॉज दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस एंड वी विल बी एबल टू एड्रेस। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर आइसोलेट देम। उनका डिप्रेशन और आइसोलेशन जो है वो अवॉइड करना है। सो बी विद देम। हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलें हो, क्योंकि पेशेंस बहुत चाहिए एक डिमेंशिया एल्डर के साथ में रहने के लिए। And you have to also deal with challenging behavior. So challenging behavior is something which we will discuss in our next session, which we are taking on 23rd of September, जिसमें हम आपको टाइप ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर्स बताएंगे और घर पे हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। साजू। So things to keep in mind for the daily schedule. So जब भी आप किसी डिमेंशिया एल्डरली का केयर करो, जब आप एक केयर गिवर के शूज में रहते हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप उनका डे कैसे प्लान करोगे। आपको एक शेड्यूल बनाना होगा जहाँ पे आप उनका डे मैनेज कर रहे हो, उनको प्रॉपर मेडिकेशन और गुड स्लीप मिल रहा हो, ये इंश्योर करना जरूरी है। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो उनको उनका दिन डिसाइड करता है। अगर रात को अच्छे से सोए हैं तो उनका दिन अच्छे से स्टार्ट हो सकता है।
अगर रात को नहीं अच्छे से सोए, डिस्टर्ब स्लीप है, सो ही नहीं पा रहे हैं, सो वो ऑटोमेटिकली एक टॉल लेते हैं उनके फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे, जो ऑटोमेटिकली आपको उनके दिन में दिखना शुरू होगा। एजिटेशन, एग्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाए। सो एंश्योर कि उनका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है और अच्छी स्लीप उन्हें मिले। अगर नहीं मिल रही अच्छी स्लीप तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस चीज को वहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सेकेंड पे आता है म्यूजिक। म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो हर जगह यूज होता है, और डिमेंशिया के स्टडीज में भी ये एविडेंट है और प्रूव्ड है कि म्यूजिक ब्रेन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जब गुड काम सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन सेल्स वहाँ पे वर्क करते हैं, और एक तरीके से पुराने गाने जो आप 90s 80s के पुराने गाने सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग रिकॉल करता है। मेमोरी में दो तरीके के पार्ट्स है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। डिमेंशिया में शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट होता है, अगर मैं इन शॉर्ट इस चीज को समझाऊं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने कुछ किया अभी, उसको भूल जा रहे हो थोड़ी देर में, एक दिन में भूल जा रहे हो, धीरे धीरे वो आधे दिन में भूल रहे हो, धीरे धीरे वो कुछ घंटों में भूल रहे हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी चीज है जो आप वो काफी लंबे टाइम तक रहता है, आपके साथ होता है। और काफी बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनको तो पुरानी चीजें याद है लेकिन नई वाली चीजें याद नहीं है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये जो गाने हैं, उनके फेवरेट एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, वो सारी चीजें स्टोर्ड है। तो जब ये सुनते हैं तो एक स्टिमुलस है, और म्यूजिक का हेल्प करता है एक ओवरऑल वेलबींग, चाहे वो एजिटेशन, एग्रेशंस को काम करने के लिए हो, चाहे वो उन्हें एक्टिव रखने के लिए हो, चाहे वो उन्हें किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो म्यूजिक सब जगह यूज हो सकता है। लैंग्वेज प्ले, लैंग्वेज प्ले में क्या करते हैं हम बेसिकली, धीरे धीरे जैसे प्रसिद्धा ने कहा कि स्टेजेस प्रोग्रेस करते हैं तो वोकैबुलरी में, लैंग्वेज में, स्पीच में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट गेट्स अफेक्टेड, वो एरिया का हो सकता है लैंग्वेज ये रहा हो, और वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि वो एक्टिव रखना है, बात करते रहना है, या फिर क्या बोलते हैं, हमें स्पीच थेरेपी एक चीज है जो कर सकते हैं, और उन्हें लिखना, पढ़ना और उन सारी चीजों को एक्टिव रखने की कोशिश करना। और दूसरा समझना है, बेसिकली आप एक केयर गिवर के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप समझो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है उनका लैंग्वेज अफेक्टेड है और वो सिर्फ मिनिमल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कुर्सी कुर्सी, बार बार रिपीटेशन है, कुर्सी ये बोल रहे हैं। सो ये आप नोटिस कर पाओगे कि ये वर्ड पर्टिकुलरली कब बोलते हैं, जब उनको बाथरूम जाना है, जब उनको अर्जेंसी है, वो बोल नहीं पा रहे, उनको बाथरूम जाना है, लेकिन कुर्सी कुर्सी बार बार रिपीट कर, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लैंग्वेज प्ले वहाँ पे वैसे हेल्प कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्ले, तो ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप उनको हैंड मतलब छोटी छोटी चीजें, किचन एक्टिविटीज हैं, हाउसवाइफ्स हैं, एल्डरलीज हैं, वो नॉर्मल किचन एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे पिंचिंग लीव्स, मेथी के लीव्स अलग करना, ग्रेन्स को सेपरेट करना। सो ये सारी चीजें आपको देखना होता है, आपको चुनना होता है और अलग करना होता है। सो बेसिकली हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ब्रेन के उस फंक्शन को, मोटर फंक्शंस को और ब्रेन के उस फंक्शन को एक्टिव रखता है। नेक्स्ट है बीइंग अलाउड टू टेल देयर स्टोरीज। सो यहाँ पे हमें बेसिकली ये देखना है कि वी हैव टू बिकम अ गुड लिसनर रादर देन स्टोरीज। एल्डरली तब बोलेंगे जब हम उसको सुनने के लिए बैठे होंगे उनके पास, और काफी बार ऐसा होता है कि एल्डरली के पास कोई होता नहीं है उनकी चीजें सुनने के लिए, या फिर कोई उनके पास उतना टाइम स्पेंड करे कि उनकी चीजें भी सुने। सो आज के बिजी लाइफ में ये काफी कॉमन है, और हमें कुछ टाइम अपने एल्डरली के लिए निकालना चाहिए जहाँ पे हम उनका सुन सके और उनकी चीजें एड्रेस कर सके। हो सकता है ये 20वीं बार या 25वीं बार आपको बता रहे सेम स्टोरी, लेकिन उनके लिए ये उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही एनर्जेटिकली मतलब एनर्जी वाला चीज है, क्योंकि उनके लिए वो पहली बार, वो अपने दिमाग में ये सोचे कि वो पहली बार बता रहे हैं आपको। सो आपको वो जो मोमेंट है उसे वैसा ही लाइवली और एनर्जी के साथ रखना है जैसे आपने पहली बार सुना। एक्सरसाइज एक डेली रूटीन का पार्ट है जिसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर फिजिकली एक्टिव नहीं है एल्डरली, उनको पैसिवली आप एक्सरसाइजेस करा सकते हो, स्ट्रेचिंग करा सकते हो,
वॉकिंग जो डेली रूटीन का पार्ट बन सकता है, योगा, अगर जो बेसिक योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये सारी चीजें बैठ के आप उनके साथ करा सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपको एल्डरली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा ये सारी चीजें कराने के लिए, क्योंकि वो अपने आप से ये सारी चीजें इनिशिएट नहीं कर पाते। और ओवरऑल प्रमोटिंग वेलबींग, सो एक होलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे सारी चीजें कवर हो रही है। उनका डाइट है, एक्सरसाइज है, डेली रूटीन है, सोशलाइजिंग है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये सारी चीजों को रखते हुए हम वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो एक एक एल्डरली के रूटीन में आप डाल सकते हो और उनका शेड्यूल बना सकते हो। नेक्स्ट। Sorry, stuck. So, in dementia, there is 5 golden rules which we have to remember if we are taking care of elder with dementia. No questions. कोई क्वेश्चन मत पूछिए उनसे, कहाँ रह रहे हैं, क्या खाना है, कैसे आप कर रहे हो, आप कहाँ काम करते थे, आपके कितने बच्चे थे, ये सारी चीजें नहीं पूछना है, क्योंकि दिस विल बी देयर प्रॉब्लम। उनको सोचने में, रजिस्टर करने में दिक्कत हो जाएगी। हर चीज में यस बोलिए। अगर बाहर बारिश भी हो रही है और वो बोल रहे हैं कि धूप निकली है, प्लीज से यस, कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि वो दे विल बी ओके विथ इट। अगर हमने उनसे आर्ग्यू किया तो फिर वो आर्ग्यूमेंट, उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहा है, तो प्लीज लिसन टू एन एक्सपर्ट, किसी से हेल्प लीजिए, क्योंकि ये चीज अगर घर पे मैनेज नहीं हो पा रही, दैट मीन्स वी नीड अ हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ रेसिडेंट और अ एल्डर विथ डिमेंशिया, आप जैसे ही उनके कमरे में एंटर करते हैं तो आपने उनकी दुनिया में कदम रख लिया है। फिर आप नहीं हो, आपको उनकी तरफ से सोचना है, क्योंकि उनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है हमसे। हम जो सोचते हैं, हम जैसे चीजों को देखते हैं, वो वैसे नहीं देखते हैं। इट इज इंटायरली डिफरेंट एंड वी कांट अंडरस्टैंड देयर पेन। वो लोग बहुत सारी चीजों से सफर कर रहे हैं, विच वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड। सो हम यहाँ पे फैसिलिटीज में अपने जो टीम है उनको हम यही बोलते हैं कि जब आप ड्यूटी पे आ गए तो आप नहीं हो, आप फिर वो एल्डरली के लिए ही हो। अगर वो बोल रहे हैं कि बाहर शेर भी खड़ा है तो शेर खड़ा है। So this is what we actually practice. One very last thing जो हमने अभी तक चीजें की है, just want to recap कि working with delusion not against them। वो बोलेंगे कि शेर है बाहर, लेकिन वो आपको उस चीज को वैसे ही डील करना है कि हाँ शेर है, हम भगा देंगे, बट ये नहीं उनको समझाना है कि आप क्या बोल रहे हो, शेर यहाँ कैसे आएगा, ये शहर है। नॉट विद दैट। ह्यूमन राइट को प्रमोट करना है। दे हैव फुल राइट कि वो अपनी चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। उनकी पास्ट एक्टिविटीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिमेंशिया में हमेशा याद रखिएगा उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, उनके बचपन की चीजें, वो सारी चीजें उनको याद होगी। तो कुछ चीजें जो वो पास्ट में करते थे, कढ़ाई बुनाई, कार्ड खेलना, क्लब जाना, ये चीजें उनको याद होगी। सोशलाइज कीजिए, आप जहां जाते हैं कोशिश करिए कि आप उनको वहां ले जा सके, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। हो सकता है कि वहां जाके इशू हो, लेकिन आपको उसको डील करना है, क्योंकि वो हमारे फैमिली का हिस्सा है। स्ट्रेस उनको कम होना चाहिए। ऑलवेज गिव देम चॉइस। उनको डिमेंशिया है, वो समझ नहीं सकते, पर फिर भी अगर आप उनको नहलाने ले जा रहे हो, आप उनको 4 कपड़े दिखाइए, आप बोलो, या सॉरी 2 कपड़े दिखाइए, आप बोलिए कि आज क्या पहनना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पसंद बहुत मैटर करती है एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। कभी भी उनसे डिसएग्री नहीं करना है, हमेशा बोलिए यस, कुछ नहीं होगा। दे विल बी वेरी हैप्पी अगर हमने उनसे बोला कि आप क्या चाहते हो। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट डिमेंशिया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट इज डिमेंशिया, कैसे अंतर करेंगे नॉर्मल एजिंग एंड डिमेंशिया में। वी अंडरस्टूड अबाउट डायग्नोसिस, क्या चीजें काम कर सकती है, क्या चीजें नहीं काम कर सकती। ओपन फॉर अ क्वेश्चन सेशन। May I ask one question? Yes, please. जो डिमेंशिया या स्पेशली अल्जाइमर्स में जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन की, वो डायलेट हो जाते हैं? वेंट्रिकुलर डायलेट होते हैं, उसमें स्पेस हो जाता है, लेकिन उसमें वेंट्रिकुलर डायलेशन वाला जो प्रोसीजर है वो काम नहीं करेगा। नहीं, बिकॉज वंस आई वेंट टू मसूरी, मतलब आई स्टेड देयर फॉर 4-5 years, एंड जाने के 5-6 दिन बाद ही मैं एकदम बहुत जोर से जैसे
मुझे वटाई को हुआ, मुझे लगा ऊपर आसमान नीचे आ गया और जमीन ऊपर में गिर गई। मुझे देहरादून शिफ्ट किया गया और उन्होंने मुझे माइनर स्ट्रोक सोचा, लेकिन सारे टेस्ट वगैरह किए और ऑब्जर्वेशन एडमिट भी किया मुझे उन्होंने। इसके बाद सारे सीटी स्कैन वगैरह सारे हुए, एमआरआई तो मैंने मना कर दिया, बिकॉज लिखवा लिया कि मैं क्लैस्ट्रोफोबिक हूँ, आई कैन नॉट अंडरगो एमआरआई। तो उन्होंने फिर बाद में जब जो रिपोर्ट्स आई ना, दे डिडंट लेट मी सी द रिपोर्ट्स। तो उन्होंने फिर बाद में मेरे को हर बार कोई साइकेट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट आता था मेरे से मिलने के लिए, सवाल पूछते थे। फिर बाद में कहते थे ये तो ज्यादा ही नॉर्मल है, ये तो हाइपर नॉर्मल है, तो ऐसे बोलते थे, मैं समझ नहीं बात। बाद में मुझे मेरे बच्चे आए और चंडीगढ़ ले गए, मेरी बेटी और दामाद आए ले गए, वहां पे भी उन्होंने काउंसलिंग कर ली। मैंने बहुत महीनों बाद रिपोर्ट देखी तो उसमें था वेंट्रिकल, जो लेटरल वेंट्रिकल और कौन से वेंट्रिकल डायलेटेड है। तो बाद में पता चला ऐसा अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया में डायलेट हो जाते हैं। तब से मैं बहुत मतलब इस मामले में सस्पिशियस हूँ कि पता नहीं मुझसे छिपाई गई क्या ये बात, क्या हुआ। मैं शिजोफ्रेनिक हूँ, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, इवन आई एम ए डॉक्टर, एमबीबीएस ही हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं तू कहाँ से शिजोफ्रेनिक हो जाएगी, न तू वो होगी। लेकिन ये है कि मुझे अब वो भूलने लग गया कि भाई पुराने मेरे क्लास कोई था, मेरा स्टाफ मेंबर था, उसका नाम क्या है, या उस पिक्चर में फलानी जो हीरोइन थी उसका नाम, हीरोइन कैरेक्टर का नहीं, मतलब उसका नाम क्या है, इतना तो मेरे को शुरू हो गया है, नो डाउट। बाकी तो मुझे बातें लोग कहते हैं कि तू तो भूलती नहीं है, 20 साल पहले बातें भी करती है। अब बताइए मुझे मेरे वेंट्रिकुलर मतलब बताइए कि व्हाई माय वेंट्रिकल्स आर डायलेटेड। सो आंटी, एज रिलेटेड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट भी होता है। सो वो कहते हैं, आई हैव आल्सो रेड कि अल्जाइमर्स में वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होता है क्योंकि वो ब्रेन सेल्स वो श्रिंक हो जाते हैं। शिजोफ्रेनिया भी कह रहे थे, शिजोफ्रेनिया में भी। शिजोफ्रेनिया का एक्चुअली ऑनेस्टली आई हैवंट रेड अबाउट इट, बट मैंने पार्किंसन में भी सुना हुआ है कि वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है, बट डेफिनेटली उससे हम डायग्नोज नहीं कर सकते कि डेफिनेटली डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स है कि नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फॉरगेटफुलनेस थोड़ा लग रहा है जो नॉर्मल से ज्यादा है, तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से विजिट करके, वो लोग एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, उससे वो लोग रूल आउट कर लेते हैं कि इम्पेयरमेंट कुछ है कि नहीं है। और इनिशियल इम्पेयरमेंट है तो हम उसको उसी हिसाब से फिर हम टेक केयर कर सकते हैं। या डायबिटीज से कोई रिलेशन तो नहीं है डिमेंशिया का? डायबिटीज एंड डिमेंशिया देखिए रिलेटेड तो सारी चीजें रहती है, बट ऐसा कुछ डायरेक्ट डिमेंशिया से रिलेटेड तो नहीं। आई एम 71 years old एंड मुझे 15 साल से डायबिटीज है। ओके ओके, आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी तो चंडीगढ़ में हूँ, वैसे लुधियाना और चंडीगढ़ के बीच में घूमती रहती हूँ। ओके, तो चंडीगढ़ में तो आपका पीजीआई है इतना अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे भी आप तो एक बार I must go and get myself checked by या जस्ट गो एंड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाइए। और आंटी yes, और आंटी जैसे हम लोग ने हमारे सेशन में कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो काफी बार होता है कि ये नॉर्मल एजिंग का ही पार्ट है। आपको अवेयरनेस है कि आपको भूलने की बीमारी हो, मतलब आप भूल रहे हो, पुरानी जैसी चीजें याद नहीं रख पा रहे हो, तो दिस कैन बी नॉर्मल एज पुरानी बातें तो इतनी याद रहती है, लोग बदनाम करते हैं, इसको याद होगा 20 साल का 30 साल का। मुझे नाम भूलने लग गए। जैसे कई बार कोई इंसान मिलता है, मैं सोचती हूँ ये मेरा राजस्थान का स्टाफ मेंबर था या पंजाब लुधियाना का था या यहीं का कोई चंडीगढ़ का है, ये भूल जाती हूँ मैं। और मैं बहुत एम्बेरस फील करती हूँ और मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक हो, बाकी सब ठीक हो, आजकल कहाँ पे हो, कि ताकि उसको पता ना लगे कि मैं उसका नाम नहीं जान सकी, उसको पहचान नहीं पाई। तो इतना ये रियलाइजेशन, राइट, जो ये रियलाइजेशन है, हाँ, इतना सही हुआ है। एक बार छोटी सी बात आपको एग्जांपल देती हूँ। एक सफदर हाशमी थे जो नुक्कड़ नाटक करते थे और बड़े मीडिया के उसमें थे, तो एक बार उनको मार दिया था लोगों ने ना, तो शबाना आजमी ने आईफा में खड़े होकर सवाल उठाया था और बड़ा शोर मचा था। मैं पागल सी रात को सोते सोते याद करती थी वो कौन था जिसको मारा, तो सफदर हाशमी नाम नहीं याद आता था, जाके उठा के मेरे बच्चों को जगाती थी, वो कौन था बताओ मुझे, जिसके लिए शबाना आजमी ने, वो सफदर हाशमी ने मेरी जान ले ली। फिर बाद में मैंने किताब में भी लिखूं तो मुझे मिलेगी नहीं, मैंने दीवार पे लिख लिया सफदर हाशमी। यहाँ से शुरू हुआ था मेरा, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। I think aunty, yes, Ajay. Okay, can I say something? Yeah, so what we think is, so your advice is to get myself checked up by a neurophysician for your satisfaction, yes, and you should
relax, because people cannot judge what you are going through, right? So you should take a step back, relax a bit, and see whether you are getting affected or not. Because काफी सारी चीजें तब होती है जब आपसे कोई सवाल पूछता है, and if you're not able to answer it, you And automatically they ask say, question yourself. when you know your problem, that means you are not having dementia. Right, exactly. So if you're well aware of your current situation, then we see that it cannot be dementia. I mean, it may not be dementia, but normal aging as well. I want to ask you. Thanks for relieving me of this, at least at the time being. Thank you so much. Thank you. Welcome. People say both for Okay, next we can come on to Swarna ji, and after that Ranjana ji will come back to you too. Swarna ji, please go ahead. Actually, my husband is he has problem of Parkinsonism, and I think Parkinson induced dementia. But one thing I noticed that in the morning he makes some poems of 4 lines in his own language. अभी से भी बोलते हैं poems बोलते हैं, हम लोग तो बहुत वाह करते हैं, but and he is also intelligent enough that he doesn't realize, he will not say in front हाँ समझ गया, कोई भी आ जाता तो उनको फिर बाद में हमें पूछता था, मेरा नेफ्यू आया, अरे बहुत जान पहचान लग रहा कौन है, but that much since he has in front of him, never he asked कौन है, but एक तो है मुंह से बहुत आवाज निकालते हैं हमेशा, that is, I think that is a voluntary action or involuntary, I don't know, because when he goes to doctor he never makes sound, but otherwise always I have to say चुप करो, जैसा अभी कर रहे बाद में बोले चुप, he whistles all the time, he makes sounds. Is it related with dementia? And another thing, one doctor gave him a memory patch. So is it good? The another doctor he is not giving. So is it good to use memory patch? I don't think it has any side effect, so I can use it or not. And I'm also having nowadays, because of stress, sometimes I also forget so many things, names especially, and then medicine, what I use. So I write, and then I tell to my doctor about myself also. I am also feeling that I am very much scared, but if it comes to me, then who is going to take care of the house and all? So this thing, because of the stress, maybe it is happening to me also. Right, Swarna ji, a big applause for you, because आप एक caregiver के तौर पे you are taking good care of your husband, and it's quite common that caregiver burnout होता है. जब आप किसी का एक caregiver बन के किसी अपने family member का ख्याल रखते हो और अपना most of the time उनके लिए spend करते हो, तो ये quite common है कि आप stressed feel करते हो, आप burnout feel करते हो, और उस वजह से आपको भी health problems आने शुरू होते हैं. But you should take some break for yourself to get relaxed, and ऐसी चीजें करिए जो आपको अच्छी लगती है और आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हो सारी चीजों से. राइट. दूसरा, अंकल के लिए जो आपने बताया, जो साउंड वगैरह करते हैं वो नॉर्मल है, डिमेंशिया में ये होता है. जब हाँ, जब वो अपने आप बैठे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहा होता है, अपने एकदम से आवाज आ रही होगी. राइट. वो एकदम से अगर unmute करूँ और one thing, but when I take him to doctor, that time 3 hours, even if it's 3 hours, I want that he should make sound so that I can show to doctor this time. But that time he doesn't do. So the other day he was in Artemis for 3 hours, and then we had to the cafeteria and all. He didn't make any sound, but as soon as he entered home and he started making, and sometime, and I have to take my phone to the other room to speak to somebody else. So that is the problem, or whatever it is. So this can be one more thing. जैसे हम लोग ने कहा कि वर्ड नहीं मिलता है तो हम कोई और वर्ड यूज करते हैं, चेयर या बोलते हैं कुछ वैसे चीजें करते हैं, तो ये आवाज भी उसी तरीके से हो सकता है. घर पे आके हो सकता है कोई नीड उनका वहां पे वो फुलफिल कराना चाह रहे हो, चाहे भूख लग रही हो, बाथरूम जाना है, ये कोई भी मतलब एक हो सकता है एग्जाम्पल कि वो उस आवाज से उस चीज को जाहिर कर. दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी. या तो ये एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, एलएलई में हमने देखा हुआ है डिमेंशिया में
कि वो अपने आप से ही कुछ एक रैंडमली इनवॉलंटरी आवाजें निकाल रहे हैं या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहा है. So there could be these possibilities. The neurologist who looks after him or the treating doctor can tell better because they have been examining him better, right? काफी टाइम से. और जो मेमोरी पैच का आपने बताया, different neurologists have different treatments and based on the patient's condition, the elderly's condition, they tend to try different medications. And डिमेंशिया के लिए अभी भी काफी सारी रिसर्च, काफी सारे स्टडीज चल रहे हैं, तो हर रोज एक नया मेडिसिन, एक नया ट्रीटमेंट इवॉल्व हो ही रहा है. सो इट कैन हैपन कि डॉक्टर आगे जाके और भी चीजें एडवाइस करें, पर द फोकस शुड बी कि उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग में वो कितना हेल्प कर रहे हैं. वी डोंट वांट टू बर्डन एनी एल्डरली विद सो मेनी मेडिकेशंस आल्सो. सो the memory patch, if it improves, then temporary, maybe not it will cure, but is there any problem to use that? I don't know. Except skin rashes, I don't think there will be any side effects. किसी को हो सकता है कि skin rashes हो जाए. And he should evaluate the what stage of dementia I should take him for evaluation. I don't know. So normally you have to ask to the neurologist कि आपको stage पता करना, otherwise they will not write, they will just write dementia. The doctor told me to, but because of this COVID and all, I didn't take him. आप वीडियोस ले सकते हो, जब वो साउंड बनाते हैं उसका वीडियोस ले जाके आप फिर दिखा सकते हैं. हाँ, वो डॉक्टर ने बताया कि आपने दिखाइए, तो I will make the videos. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, Ranjana आंटी, आप म्यूट हैं आंटी. Mute. I just want to share one thing. My sister-in-law, she's no more. She was having dementia. She was in 6th or 7th stage, I can say, because she had only one daughter and granddaughter. She could not recognize them also. So they had hospitalized her. What is that called? Where that mental, whatever. Asylum. Asylum. I'm not able to see. I am. So that time doctors told her that there is no medicine for dementia. But people, those who are confident, strong, so they will not have. So after 60 years or like that, I mean, we had a talk with the doctor, said elderly people should be mentally strong. Those who are weak people, they are prone to get that disease. So mentally strong people, no, I will not forget it. I will keep it in my mind. So like that, other things also. So those who are strong mentally, so they will not get it so easily. That's what I want to say. That as there is no medicine for that, so one has to be strong enough to not to enter this in your mind. बट रंजना, एक बात दूसरी बताने वाली हूँ कि हमें तो ये मालूम था कि अल्जाइमर और माइग्रेन बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ही होता है. इससे मैं तो खुश थी यदि हो जाए तो. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी तो नहीं होना चाहिए ना. नहीं, आई मीन एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉजिटिविटी. अल्जाइमर और माइग्रेन जो है ना, ये इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी होती है. मुझे माइग्रेन था यंग एज में, अब नहीं है वैसे, अब नहीं We है. are normal human being, and Manju madam, she's doctor, she's MBBS. We are normal साधारण लोग हैं. So for us, it is now we should strong enough as we have. Okay, I have one question, please. Yeah. So thank you for sharing your views, Ranjana ji. And who was saying that they have a question? Yes, me. Suchinta ji. 1 minute. Yeah, please go ahead. Is there any link between Parkinson and dementia? Yeah. There is. I am suffering from Parkinson. What precautions I should take? So, Auntie, as we have explained, जो normal aging, normal forgetfulness और dementia का जो forgetfulness है, you have to just take care of that. कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आपका forgetfulness वो normal से थोड़ा सा ज़्यादा है, so
तो जस्ट विजिट, आप ऑलरेडी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे भूलना थोड़ा ज्यादा हो रहा है या फिर कुछ और एक्टिविटीज मैं नहीं कर पा रही हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ. सो दे विल डू अ मेमोरी टेस्ट एंड दे विल इवैल्यूएट यू एंड दे विल लेट यू नो कि ऐसा कुछ है कि नहीं है. तो ज्यादा नहीं हो रहा है, right. बस नॉर्मल जैसा होता है कि राइट. सो आंटी, जरूरी नहीं है कि हर किसी को जिनको पार्किंसंस है उनको डिमेंशिया हो करके. पार्किंसंस सिर्फ पार्किंसंस भी हो सकता है, पार्किंसंस एसोसिएटेड डिमेंशिया भी हो सकता है, सिर्फ डिमेंशिया भी हो सकता है. सो पार्किंसंस में आपको डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो दवाइयाँ देते हैं उसको जो टाइमिंग्स है उसे प्रॉपर उस टाइमिंग पे फॉलो करना होता है. और अगर आपको लग रहा है कि आपके मेमोरीज में कोई या फिर आपके डे टू डे रूटीन्स में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, दिक्कतें हो रही है, देन एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं. बट ये जरूरी नहीं है कि जिनको पार्किंसंस है उनको डिमेंशिया होगा ही होगा करके. बट केसेस हैं जहाँ पे पार्किंसंस एसोसिएटेड डिमेंशिया भी होते हैं, पार्किंसंस के साथ डिमेंशिया भी होता है. ठीक है, ओके, थैंक यू. वेलकम. सर, एक फनी क्वेश्चन पूछें आपसे? हाँ जी बिल्कुल सर. द फनी क्वेश्चन है दैट फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और अपनी मेमोरी पूरी लूज कर गया, उसके बाद दोबारा एक्सीडेंट होता है तो रिवाइव हो जाता है. कुछ व्हाट इज दी, कुछ इसके बारे में वुड यू लाइक टू थ्रो एनी लाइट इन दिस? पुरी अंकल, इसमें होता है. सो दिस इज देयर इज डिमेंशिया जो होता है ना, वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल है. सो जो रिवर्सिबल होता है उसमें हेड इंजरी आता है. अगर हेड इंजरी आपको हुआ है और वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वो पिक्चर वाला वापस वहां चोट नहीं करवाना होता है. लेकिन अगर चोट लगने से कोई क्लॉट हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वो सर्जिकली अगर हम वो क्लॉट रिमूव करते हैं तो वो क्लॉट ब्रेन के जिस पार्ट में दबा के रखा हुआ है, बाई चांस हो सकता है थिंकिंग वाला जो हमारा पार्ट है वही दबा के रखा है. सो इफ यू रिमूव दैट क्लॉट तो वो पर्सन फिर नॉर्मल हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल डिमेंशिया. सो रिवर्सिबल डिमेंशिया में ब्रेन इंजरीज, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है वो आते हैं. कुछ विटामिन की वजह से, B12 की वजह से भी फॉरगेटफुलनेस ज्यादा होता है. अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से डिमेंशिया ज्यादा होता है, या फिर कुछ स्ट्रोक की वजह से थोड़ा सा फॉरगेटफुलनेस होता है. सोडियम पोटेशियम कम होने की वजह से फॉरगेटफुलनेस होता है. पर जैसे ही आप ये चीजें पूरी करते हैं तो आपका वो फॉरगेटफुलनेस ठीक हो जाता है. दैट डजंट कम अंडर डिमेंशिया, बट दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल डिमेंशिया, जो ठीक हो सकते हैं. इररिवर्सिबल में होते हैं जो ब्रेन सेल डैमेज हो गए, वो बन ही नहीं रहे हैं, वो बनते ही नहीं है. और पुरी अंकल मूवीज में वैसे भी लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही दिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं हर कोई वही सोचता है कि ये होता है या नहीं होता करके. बट प्रस्तुता ने जैसे कहा, रियलिटी है. मैंने कहा इस सब्जेक्ट पे सारे जने मतलब डिस्टर्ब हो रहे थे अपनी मेमोरी लॉस के बारे में. नहीं पुरी जी, हम लोगों के साथ भी होता है समटाइम्स. सोच के जैसे किचन में गए तो आफ्टर गोइंग देयर आई हैव फॉरगॉटन for what reason I have come here. Then I'll come back again and I remember for that reason I had gone there. So it's a common factor. It happens to everyone. Exactly. I mean, it happens to with me always. I mean, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कुछ करने गया तो मैं भूल गया. I'm 28 and still ये चीजें नॉर्मल है. मैं तो हाथ में मोबाइल लेके मोबाइल ढूंढती हूँ कि मोबाइल कहाँ है. हाँ, चश्मा पहन के भी. Exactly. It's a very common factor to all of you. But those who are, one thing just I told you, just those who are really strong. See, if a person is strong mentally, physically he will not be that strong. So what to do then? Physically strong होने के लिए healthy lifestyle. Exactly. So रंजना आंटी, आपने जो कहा कि mentally strong होना है, normally elderlies को ये ज्यादातर क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि आप अपनी एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे, एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे थे, और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि वो डिक्लाइन धीरे धीरे, जैसा आपका दिन बिजी रहता था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और आप कम एक्टिविटीज करते हो. तो मेन फोकस आपका एक्टिविटीज पे होना चाहिए, और इमोहा एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग को एक्टिव रखने के लिए, ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करके, एक्टिविटीज आपके लिए ऑर्गेनाइज करके. सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रेगुलरली अपना ब्रेन को एक्टिव रखते हो. सो ये तरीके हैं जहाँ पे आप अपने ब्रेन को वर्क कर रहे हो, आप एक्सरसाइजेस करा रहे हो. सो ये कंटिन्यू रखना है. आपका जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्रेन फंक्शंस को ऑप्टिमल लेवल पे रखने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहनी पड़ती है. और इंडिया में उल्टा होता है
जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे सब लोग सोचते हैं कि हम अभी आराम करेंगे, हम अब अभी कुछ नहीं करेंगे। सो वैसा नहीं, वो मेंटालिटी से बाहर निकल के हमें कुछ ना कुछ करते रहना, उम्र हो जाए तब भी। तो लोग सोचते हैं कि सारा जिंदगी भर काम किए, अभी दिस इज द टाइम वी शुड टेक रेस्ट, बट अभी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। You are absolutely correct. So with this, we will take one final question in case anyone has any more query. Otherwise, because we are already overextended by 20 minutes, but don't worry, Prasita and everyone are coming back for next. We have enjoyed a lot, Prasita and Saju. Very nice. Saju, very nice. So does anyone has any one more question? We can take one more question. Otherwise, we'll just wrap up the session now. So don't worry, we will be back on 23rd. Yeah, that's what I'm saying. We are back. So till that, अगर आपको लगता है शो के बाद मुझे एक क्वेश्चन था, मैं भूल गई, कोई नहीं, हम 23rd को we are just back and you can always take that question again from there. Thank you very much. Thank you everyone for joining us. Thank you. Thank you. Okay, fine. Thank you. Very informative session. Yeah, so next session में Suvarna aunty, I know you are one of the caregivers, so हम लोगों ने आप लोग को ही ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सेशन प्लान किया है, हाउ टू मैनेज डिमेंशिया एट होम, इनिशियल स्टेजेस वगैरह। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट कमिंग। हाउ टू मैनेज व्हाट? डिमेंशिया एट होम। अच्छा, डिमेंशिया होम। caregivers at home, how do they manage, some tips and questions that we can have. कोई लार्जर इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट ही लिया जा सकता? आप बता दीजिए आपका। This is a dementia awareness kind of month, because it's like a kind of thing on a very international level that's celebrated. That's why we are coming up. मैंने कहा भाभी खाएंगे इसलिए छोड़ा हुआ है। बाद में so इस महीने के लिए हम संजना, अगर डिमेंशिया के ऊपर ज्यादा प्रोग्राम चलोगे ये ना हो कि हमको डिमेंशिया हो जाए। सर जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बीच में चेंज करते रहो, बिकॉज वी डोंट हैव अ डॉक्टर विद देमोहा, तो बेहतर यह है कि कोई ना कोई और सब्जेक्ट होता रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो वो डेली, इसलिए हम डेली आपके चेंज सेशंस होते हैं, तो जैसे कल आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, आज जैसे आपका दूसरा सेशन है जिसमें कॉग्निटिव। हमारा डॉक्टर कहाँ है संजना, ये बताइए मोहा में। हाँ, डॉक्टर कहाँ सर, वो चेंज होता रहेगा, आप नेक्स्ट मंथ से और चेंज होंगे, आप टेंशन मत लो उसका बिल्कुल। कौन है अभी है कि नहीं? कैन वी एवर से दैट ही इज आवर फैमिली डॉक्टर और समथिंग दे? सर मैं आपको समझी नहीं। मैंने कहा ऐसा होता अगर मोहा का कोई डॉक्टर हो ना, तो एटलीस्ट जैसे डॉक्टर बाबा थे तो हम उसको अपने फैमिली डॉक्टर कहा करते थे। ठीक है सर। तो अभी तक आफ्टर बाबा के जाने के बाद वी हैव नॉट बीन एबल टू हैव एनी डॉक्टर। So we'll definitely work on this feedback of yours. Let's figure out कि हम ये कैसे कर सकते हैं। We'll definitely 3 महीने हो गए, 3 months have passed without a doctor. ठीक है, perfect. We'll work on नहीं ऐसी रहेगी। Okay, so with this I come to the end of the show. लाइक कैसे जलाओ, क्या करें? A special thank you. I'll just request everyone to please go on mute. With this, we come to the end of this show, and thanks to Prasita and Saju. As always, you do a very fabulous show. And the best part, as I always reiterate this fact, like the best part about your shows is आप कोई doctor kind of figures नहीं देते हैं. You simplistic way में आप समझाते हैं, which is the best thing for anyone and everyone over here. So thank you again, and see you all again. And today, just to reiterate, we have a 5 p.m. show with Kaleidoscope. It's going to be a very interesting session. And please keep your pen and paper with you. That's it. Thank you everyone. क्या है वो? What is that? Thank you, Sanjana, it's a cognitive ability and many other things. 2 psychologists are coming today, so you'll have some exercise to do also. So that's why I'm saying pen and paper आप रखिएगा. Okay. Thank you. Okay.